ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਐਂਡ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1946 ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 389 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 292 ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ 99 ਮੈਂਬਰਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਰਮ ਬਣਦਾ ਉਹ 299 ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਲੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ 13 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਚ ਐਨ ਮੁਖਰਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हाँ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर देखें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। इन्फ्लुएंस मतलब दूजे कॉन्स्टिट्यूशन तो दूजिया अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्होंने सारे तो चक्या हुआ है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो उत्थों दी ये पूरा संविधान जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाओ जल्दी आ जाओ है ना, उत्थों ये सारा देखने को मिलता है। तुसीं आए हो हाले? अच्छा रिया भी आई है, होर भी आया कोई? हाँ जी गुड मॉर्निंग, ठंड बहुत है। ठीक है, तो ये सारा देखने को मिलता है। हुण फैडरल सिस्टम जिवें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 तो की लिता आप फैडरल स्ट्रक्चर लिता आप है ना, फैडरल स्ट्रक्चर लिता है, सैपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है ना बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लिता आप। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हो गया या और आप की लिता, ये सारे आप याद करने हैं ना। पावर्स ऑफ फैडरल जुडिशरी लिती आप, एमरजेंसी पावर्स लेतियाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेती, बाय ब्रिटिश तो की लिता आपने, पार्लीमेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिता, कैग द ऑफिस लिता, राष्ट्रपति नॉमिनल हैड होंदा है ना जिवें उत्थे क्वीन होंदी है वो लिता आप, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स लिते, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन लिती, यूएस तो की लिता आप, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिता, जो जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविजनस लितियाँ, फिर फंडामेंटल राइट्स आप उत्थों चक्के एंड फाइनली आपने देश का प्रीएम्बल भी उत्थों इन्फ्लुएंस्ड है। वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन किवें हो रही है, आयरलैंड तो आप DPSP रखा, आयरलैंड तो आपने ये देखा कि जी राज्य सभा के नॉमिनेशन करते हैं आप मैंबर्स की वो सारी आयरलैंड तो चक्की एंड कैनेडा तो आप देखा कि अपने देश का जो फैडरल स्ट्रक्चर है वो कैनेडा के परसपैक्टिव नाल आप देखा एंड इवेंचुअली जर्मनी तो आपने एमरजेंसी प्रोविजनस कुछ चक्कियाँ जिमें कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते ड्यूरिंग एमरजेंसी। साउथ अफ्रीका तो आपने अमेंडमेंट देखी कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का एंड फाइनली USSR तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो चक्कियाँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट लिख दो, यदा रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होंदा, ऑन दी अदर हैंड यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होंदा है। सो उत्थे पार्लीमेंटरी लॉ ही सब तो इंपॉर्टेंट देखा जाता है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो आया सी उदों 395 आर्टिकल सी, 22 पार्ट से 8 शेड्यूल है, लेकिन हुण 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, 101 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं है ना। तो ये सारी जिहड़ियां आप देखियां तो रिजिड है, फ्लैक्सीबल है ना, पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लैक्सीबल है। अगर अमेंडमेंट करनी है तो सिंपल मेजोरिटी नाल हो जूगी है ना, नहीं करनी तो फिर बहुत औखा हो जाता, स्टेट्स को भी इंक्लूड करना पैंदा। सो जिथे फ्लैक्सीबिलिटी चाहिए तो फ्लैक्सीबिलिटी है, जितने रिजिडिटी चाहिए तो रिजिडिटी है। देश का फैडरल स्ट्रक्चर है बट सेंटर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है, सो फैडरल गवर्नमेंट विद यूनिटरी बायस है, कॉन्स्टिट्यूशन सैकुलर है एंड डेफिनेटली पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को अपनी मिलती है। सो अगर आप देखिए प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोग्रेसिव मतलब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्यूचर की गल्लां करता है, मॉडर्न आइडियाज़ की गल्लां करता है, फंडामेंटल राइट्स की गल करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की गल करता है, DPSPs की गल करता है, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड जुडिशरी है एंड डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के आइडिया है ना वो करते हैं। तो अगर आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रीएम्बल है ना। सो प्रीएम्बल तो बाद
प्रीएम्बल आ गया। हाँ, तो सब तो पहला टॉपिक है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल तो स्टार्ट होंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज इंटैग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। ये अपना केशवानंद भारती केस ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कशन की सी। प्रीएम्बल ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलर रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਇਹ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਜਸਟਿਸ। ਫਿਰ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਥਾਟ, ਬਿਲੀਵ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी है ना, ताकि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन मेनटेन होवे। तो फ्रेटर्निटी ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਐम्बल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚੀਵ करना चाहते हैं है ना, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इवेंचुअली आप उस तो बाद की है ना डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन 1949 26 ऑफ नवंबर। फिर उस तो बाद आपने देखा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ਦੇ ਵਿੱਚ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सॉवरन ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਗਲਿਟੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ, ਫॉर द ਪੀਪਲ। ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ दैट इज द बेसिक आइडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन स्टेट के जस्टिस है सोशल इकनॉमिक पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस का मतलब है कि समाज जस्टिस करे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते सी। इकनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सब दे कोले कमाई के साधन होन। एंड पोलिटिकल जस्टिस का मतलब है वन मैन वन वोट है ना। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रैशन, लिबर्टी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। लिबर्टी तो फ्रीडम च की डिफरेंस होंदा है, लिबर्टी तो फ्रीडम च की डिफरेंस होंदा है। लिबर्टी अनलिमिटेड है ना, फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस नाल आंदी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिबर्टी एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जाता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ensuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੀਤ, ਦੇਖੀਏ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਈਕ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਈਕ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਆਫ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਆਫ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ 1976 ਚ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਐम्बल ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ है ना, प्रीएम्बल इज इंटैग्रल पार्ट, बट प्रीएम्बल एनफोर्सेबल या फिर जस्टिफाइबल नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना। तो ये इंप्लॉय करता है कि कोर्ट ਜਿਹੜਾ कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, तो ये बेसिकली आ जाता है। फिर आ जाओ चैप्टर 4 यूनियन एंड सिटीजनशिप। ठीक है, यूनियन एंड सिटीजनशिप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 2-2.5 घंटे आप पूरी पॉलिटी कंप्लीट करनी है, तो आई होगी। ठीक है, स्पीड नाल। यूनियन एंड इज टेरिटरी, मैं नाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड टेरिटरी से बहुत ईजी है। 4 आर्टिकल अपने को 1 2 3 4। 1 आर्टिकल कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उतो इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का आइडिया पता चलता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि आप कोई नवी स्टेट एडमिट करनी है अगर तो कर सकते हैं, जिवें सिक्किम आप नहीं एडमिट की सी, या बंगाल के कुछ एरियाज, बांग्लादेश के कुछ एरियाज उन्होंने एडमिट किया। तो अगर इंडिया एक्सपैंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना। अगर कल आपने कोई नवी कंट्री, नवी कोई है ना, मतलब चाइना को अपने मिलाना है, तो आप आर्टिकल 2 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उन्होंने की ऑल्टरेशन करनी है, बाउंड्रीज एक्स वाई जेड। तो बेसिकली आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द एक्सटर्नल मैप ऑफ इंडिया, आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द 3 टॉक्स अबाउट द इंटरनल मैप ऑफ इंडिया। लेकिन ये जिन्नी भी होगी ये सारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੰਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਅ, ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਕਲ 2 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। तो अल्टीमेटली विदाउट अमेंडमेंट ये चीज़ हो जाएगी आर्टिकल 3 के अंडर बेसिकली था, है ना। तो अल्टीमेटली ये चीज़ है, एंड जो भी अमेंडमेंट होगी इंसीडेंटल होगी। इंसीडेंटल का मतलब है जिवें शेड्यूल्स बदल गया या कुछ इदा दी चीज़
चीज़ां हो गई बस वो इंसीडेंटल अमेंडमेंट्स है, दे आर नॉट द करैक्ट अमेंडमेंट। सैसेशन की गल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैरूबारी यूनियन केस के गल की हुई है कि अगर इंडिया वैसे तो ससीड नहीं कर सकता, लेकिन अगर करूगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होनी जरूरी हैगी है। बैरूबारी यूनियन के केस से डिस्कशन की सी, लेकिन हाँ बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो तुम एग्जीक्यूटिव एक्शन नाल सॉल्व कर सकते हो। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज दैट यू आर सीडिंग द बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो अगर सपोज आप देश का कुछ पार्ट किसी को देना चाहते हैं तो उस केस की होगा है ना कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होगी। लेकिन अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट है ना उन्होंने सॉल्व करना चाहते हो तो एग्जीक्यूटिव एक्शन नाल डिस्प्यूट सॉल्व हो जाऊगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू स्टेट्स क्रिएशन इन इंडिया, कुछ स्टेट्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ कि ਅਸੀਂ स्टेट्स बनन, कुछ इदां ਦੀਆਂ है ना चीज़ां है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ जिवें हरित प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड हो गया, गोरखालैंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, बोडोलैंड, विंध्यन, ये सारे ਜਿਹੜੇ स्टेट्स चाहते हैं कि ਅਸੀਂ है ना अलग अलग देश अलग अलग स्टेट्स बनना चाहते हैं, एरियाज़ कहते हैं। तो इंडिया 'ਚ टोटल अगर इन्होंने सारे की डिमांड पूरी हो जाए तो 50 स्टेट्स बन जाएंगियाँ, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंटरस्टिंग। तो आर्टिकल 3 की इंप्लीमेंटेशन होगी इस चीज़ नाल। अगर आप मैप्स देखिए तो यह प्री पार्टीशन ऑफ इंडिया का मैप है, ये इंडिया 1956 का मैप है। एंड डेफिनेटली है ना जो रीऑर्गनाइजेशन एक्ट आया 1956 के विच तो उदों इदा का मैप होंदा सीगा। एंड उस तो बाद ये सारियां दसियां भी है कि कदों किहड़ी स्टेट बनी है, ठीक है। सो इवेंचुअली देखो उत्तर प्रदेश कल ही आप देखा सीगा है ना, कल जिन्ना भी कल क्लास आप किया है सारा ये आप देखा है ना। तो आ देखो उत्तर प्रदेश से रौला पा के बह गए थे लोग। उत्तर प्रदेश कदों बनया 1950 के, आंध्र प्रदेश 1956 है ना। एंड उस तो बाद देखो नागालैंड कदों बनया अपना 1963 के, एंड हरियाणा 1966 के। क्वेश्चन कल आया हुआ पेपर के, यही मैप जे ध्यान नाल पढ़ लेंदे तो क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। किदा गलत सीगा ये है ना। तो देखो थोड़े फाइल ही है ये है ना, पढ़ने की बात है। फिर एस्पिरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, एस्पिरेंट स्टेट्स की गल करते हैं आप है ना कि किहड़ी एस्पिरेंट स्टेट्स आने वाले टाइम कि स्टेट्स बननगियां। तो इवेंचुअली आ सारियां स्टेट्स जिहड़ियां हैगियां दे विल यू नो कम इन टू बिंग। एंड रीजनस फॉर डिमांड देख लियो, ये प्रीलिम्स लिए इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं हैगा, ठीक है। हाँ ये कुछ कमेटीज़ के नाम लिखे हुए हैं जिहड़े कि इंपॉर्टेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक धर कमीशन सीगा, एक JVP कमीशन सीगा, तो एक फैजल अली कमीशन सीगा। एंड जी फैजल अली कमीशन सीगी आ देखो, फैजल अली कमीशन भी दे रखी है। एंड फैजल अली कमीशन ने 1956 के स्टेट रीऑर्गनाइजेशन एक्ट पास किया, तो इवेंचुअली आ सारियां नवीं स्टेट जिहड़ियां बनदियां गईयां 63 71 है ना। एंड इवेंचुअली 2014 जाके लास्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनी विच इज़ योर है ना तेलंगाना। उस तो बाद हुण जम्मू एंड कश्मीर बनने के चांसेस हो रहे हैं। नवीं स्टेट बून है कि बेन है, ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ओह है ना मतलब तुसीं देख लियो मेनस लिए इंपॉर्टेंट हैगी है। नैक्सट देखो व्हाट इज़ टू बी डन। सिटीजनशिप आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट आ जाता, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता सिटीजनशिप का चैप्टर। तो वो है अपने को आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप जी हैगी जी 5 to 11 आर्टिकल के दे रखी है वो की है बेसिकली अपनी है ना कि मतलब कौन सिटीजन होगा ऑन 26 जनवरी 1950। तो बेसिकली वो नहीं डिस्कशन किया कि आने वाले टाइम से सिटीजन कौन बनूगा। तो आने वाले टाइम से सिटीजन बनूगा वो दसूगा सिटीजनशिप एक्ट 1955। उस तो बाद आने वाले सिटीजनशिप एक्ट जोड़े होंगे अमेंडमेंट्स जो होंगे वो वाले बन जाएंगे। सो पार्ट 2 है 5 to 11 आर्टिकल है। अगर आप देखिए तो सिटीजनशिप लिए इंपॉर्टेंट कौन है, ये बंदा, ठीक है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ना। तो सिटीजनशिप की इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम कर दी है। ਹੁਣ क्यों इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो देखो कॉन्स्टिट्यूशन आया सीगा उस टाइम पे आर्टिकल 5 ये कहता सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ इंडिया 'ਚ रह रहे हैं वो सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। ਜਿਹੜੇ माइग्रेट हो गए पाकिस्तान तो आ रहे हैं आर्टिकल 6 ये कहता ਜਿਹੜੇ पाकिस्तान तो आ रहे हैं इंडिया 'ਚ आ गए वो सिटीजन बन जाएंगे। आर्टिकल 7 ये कहता कि ਜਿਹੜੇ पहला पाकिस्तान चले गए थे फिर वापस आ गए वो सिटीजन बन जाएंगे। तो बेसिकली ਜਿਹੜੇ इंडिया 'ਚ आ चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 8 कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस किसी होर देश 'ਚ रह रहे थे लेकिन वो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए तो वो सिटीजन बन जाएंगे। एंड फिर आर्टिकल 11 कहता कि पार्लीमेंट कोई लॉ पास कर सकता है फर्दर सिटीजनशिप ਲਈ। एंड पार्लीमेंट ने लॉ ਕਿਹੜਾ पास किया सिटीजनशिप एक्ट 1955। एंड उस तो बाद ਉਹਦੀਆਂ फर्दर अमेंडमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। किवें सिटीजन बन सकते हो तुसीं बर्थ बाय बर्थ बन सकते हो, बाय डिसेंट बन सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन बन सकते हो, बाय नेचुरलाइजेशन बन सकते हो, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बन सकते हो। सो देयर आर 5 वेज बाय विच यू कैन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। बर्थ का मतलब है कि इत्थे जन्म हो रहा है। जन्म दे विच इन्हां ने कहा है कि 1950 to 1987 एक टाइम पीरियड है, 1987 to 2003 एक टाइम पीरियड, 2003 ऑनवर्ड्स एक टाइम पीरियड है। बेसिकली 87 तो पहला जिन्हां दा इत्थे जन्म होया इट डजंट मैटर कि उन्हां दे पेरेंट्स इत्थे जम्मे कि नहीं, अगर उन्हां दा इत्थे जन्म हो रहा है तो वो सिटीजन इंडिया के बन जाएंगे। लेकिन 1987 तो लैके 2003 तक ये रिक्वायरमेंट आ गई सी कि बाय नेचर मतलब बाय पेरेंट्स का भी इत्थे होना चाहिए। सो डिसेंट का फंडा आ गया। लेकिन 2003 ऑनवर्ड्स थोड़ा जा होर स्ट्रिंजेंट करता डिसेंट की प्रोविजनस नूं है ना। आसाम का वो पूरा आ गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो गया, डिसेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया एंड नेचुरलाइजेशन होगी। इंडियन सिटीजनशिप किवें लूज कर सकते हो, 3 तरीके रिनंसीएशन, टर्मिनेशन ते डेप्रीवेशन, ठीक है। रिनंसीएशन का मतलब होंदा मैं आपे दे दा, टर्मिनेशन का मतलब होंदा है ना जिवें स्कूल दे विच मैं समझाना होंदा
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਰਿਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਨੰਸੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੂਜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੋਦੀ। ਕਿ ਜਵਾਬ आता आरटीआई पाते लोग हाँ देखो आरटीआई पाया हुआ प्लीज शो द सिटीजनशिप और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। रिस्पॉन्स आया है सिटीजन इज इंडिया बाय बर्थ इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो है ना मोदी जी इंडिया के सिटीजन है, ये प्रूव हो गया, रौला पाने की जरूरत नहीं हैगी। तो पहला देखो की होंदा सी बाय बर्थ सिटीजनशिप होंदा सीगा, लेकिन हुण बाय जिहड़ा हैगा डिसेंट होण लग गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि तुहानूं पता माइग्रेशन बड़ा वड्डा इशू हुंदा। हुण तुसीं भी देखो कैनेडा है ना, लोग कहते कि कैनेडा चले जावांगे उत्थे जम दांगे जवाक नूं ते बस जवाक नूं सिटीजनशिप मिल जूगी, क्योंकि जिथे जवाक जम्या होगा उत्थे सिटीजनशिप मिल जाती है। ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। हर स्टेट में डिसेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तो अगर आप कनाडा के सिटीजन हो और फिर आप वहाँ पे जमे हो, फिर ही जाके आपको सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो इंडिया में भी यही होता था। अब इंडिया कैनेडा है फॉर बांग्लादेश, जिवें अपने लिए हो कैनेडा है तो अपने बांग्लादेशियों लिए इंडिया कैनेडा है। तो बांग्लादेश के लोग की करते थे, ये इलीगली माइग्रेट कर देंगे सी इंडिया 'च, जवाक इंडिया 'च जम देंगे सी, बाद कह देंगे सी कि इंडिया का सिटीजन बन जूगा ये। तो फिर इंडिया की सरकार ने की किया 1987 के कहता कि भाई तुसी भी इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, फिर ही जाके थोड़े जवाक नूं सिटीजनशिप मिलूगी। सो आपने हौली हौली की करता बर्थ तो डिसेंट वाल चले गए। सो ये बड़ा लॉजिक इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन नैचुरल सिटीजन होंगे जो फॉरनर्स होंगे उन्होंने भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। जिवें आ 3 इंपॉर्टेंट फॉरनर्स है जिन्हों का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, मदर टेरेसा, ठीक है। भाजी तुम्हें पता है ये गाने बहुत वधिया गाते हैं, अदनान सामी, ठीक है। एंड नैक्सट है बैरियर एल्विन जोड़े सी ट्राइबल राइट्स के बड़े जबरदस्त जोड़े होए है। सो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ 31 ਆਫ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कल पूछा गया सी। 4 क्वेश्चन मैं तुहानूं हुणे दिखाते हैं, 4 नहीं 6-7 क्वेश्चन इन्ने 10 पेजां दे विचों ही, ठीक है। तो ये सारा उहदे विच आ गया। हुण आ जाओ है ना, आ देखो PIO OCI ये भी सारा आ गया। OCI कार्ड वर्चुअल वीज़ा मतलब वो सारे एग्जेम्प्टेड या फिर फायदा की होया ओदा ਆਪਾਂ ना डिस्कशन नहीं करनी कोई भी, ठीक है। ये मैराथन क्लास है, 2.5 घंटे बोलन दो मैनू बस, ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं होना ये, है ना। जिन समझ गए सारे जाने, ये डिबेट क्लास नहीं हैगी, है ना मोहिता। हुण आ जाओ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A फंडामेंटल राइट्स, DP फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 4A क्यों है, क्योंकि इनू आपने अमेंडमेंट नाल ऐड किया हुआ है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया सारी चीज़ें आप देखिए कि राइट टू सारे आर्टिकल्स है आप देख लेने। व्हाट आर राइट्स, जल्दी जल्दी देख लो। टाइप ऑफ राइट्स, नेचुरल राइट्स, मॉरल राइट्स, लीगल राइट्स ऑप्शन होंगे, सिविल, पोलिटिकल, इकोनॉमिक राइट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी आ जाती हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, अच्छा नेचर ऑफ राइट्स देख लियो, ठीक है। मेन्स लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगे चलते हैं। यस, एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब तो पहला आती है नेहरू रिपोर्ट 1928, जिन्होंने सब तो पहला फंडामेंटल राइट्स का आइडिया दिता। उस बाद कराची सैशन 1931 जिहदे विच इन्होंने कहा कि असं फंडामेंटल राइट्स लैके आवांगे। फिर साइमन कमीशन ने रिजेक्ट करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट करता, फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने प्रपोज किया, सरदार पटेल ने कमेटी हैड की सी इन्हां राइट्स नूं लिखण वास्ते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखो, कुछ राइट्स सिर्फ सिटीजनस नूं अवेलेबल है, आर्टिकल 15, 16, 19 ते 29 ते 30। बाकी जिहड़ियां हैगियां ओह सिटीजन ते एलियंस दोनों नूं अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ देम आर अगेंस्ट द स्टेट, बट फ्यू लाइक आर्टिकल 17, 80 आर आल्सो अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी जिहड़ा हैगा ओह नहीं कर सकदा, है ना। जिवें आर्टिकल 17 अनटचेबल
ਅਨਟੱਚੇबिलिटी है, आर्टिकल 18 टाइटल्स का राइट हैगा। तो ये दोनों राइट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਸ। ਬਟ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਤੇ 21 ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, है ना। तो आ सारे राइट्स हो गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू इक्वालिटी है 14 तो 18, राइट टू फ्रीडम है 19 तो 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है 23 तो 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25, 26, 27, 28 एंड कल्चर एजुकेशन राइट है 29 तो 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है 32 एंड 33, 34, 35 अपने एक्सेप्शंस हो जाते हैं एंड 31 भी एक्सेप्शन हो जाता है। 31, 33, 34, 35 दे आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। तो प्रिंसिपल ऑफ नैचुरल जस्टिस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੂਲ, ਬਾਇਸ ਰੂਲ, ਰੀਜ਼ਨ ਡਿਸੀਜਨ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਬਾਇਸ ਰੂਲ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਜੱਜ ਆਫ ਯਰ ਓਨ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੇਲ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ। ਵੇਲ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੋਗੇ। ਡਿਸੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਜ਼ਨਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ है ना पेरोशियल नहीं होना चाहिए डिसीजन। फंडामेंटल राइट्स 12 आर्टिकल की कहता है स्टेट दी डेफिनेशन। स्टेट दी डेफिनेशन दे विच बहुत कुछ है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स वालों चीज़ां, कोई लोकल अथॉरिटी हैगी है, वो सारिया चीज़ां आ जांदियां। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 लॉ दी डेफिनेशन दिंदा, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन, लॉज जो भी हैगा दिस इज गोइंग टू कम अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड इहदे विच आपां ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर पढ़िया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है कि फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशन दे मतलब इंडिया च कोई ਇਹੋ है ना वो है कि नाम है ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, तो अल्टीमेटली अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट तो वो खत्म हो जाऊगा। सेवेरेबिलिटी है मतलब कल पूरा लॉ नहीं खत्म करना, जिन्ना पार्ट ऑफ लॉ है वो खत्म करना है। एंड फाइनली अपने को डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आ जाता है। ओके, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ना, केशवानंद भारती केस वेरी फेमस। बिफोर गोलकनाथ की हुंदा सीगा, पार्लीमेंट सुप्रीम सीगा। गोलकनाथ पार्लीमेंट कोई भी लॉ मतलब अमेंड कर सकता सीगा। गोलकनाथ केस दे विच जिहड़ा हैगा अल्टीमेटली की किया गया कि नहीं है ना, कौन कर सकता अपने कोले है ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट एंड वो नहीं अमेंड हो सकते। एंड इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस च कहता कि फंडामेंटल राइट्स, फिर 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की गई जिहदे विच कहा कि नहीं जी कोई भी असीं अमेंड कर सकते हैं। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केशवानंद भारती केस जिहड़ा हैगा कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। सो बिफोर गोलकनाथ केस पार्लियामेंट वाज सुप्रीम, दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ केस सुप्रीम कोर्ट सेड फंडामेंटल राइट्स कैनॉट बी अमेंडेड। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सेड कि इट कैन बी अमेंडेड एंड केशवानंद भारती सेड कि ओके अमेंड बट बेसिक स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। एंड फाइनली मिनेरमा मिल केस ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਸਟ ਗੋ ਥਰੂ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ दैट है ना पर्सन ਦੀ इक्वालिटी नहीं हिट होगी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रहेगा एंड वो सारी चीज़ आ जाती है। नेगेटिव हो गया है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज पॉजिटिव, कानून के सामने सब बराबर हो, कोई भी ऊपर नहीं है तो नेगेटिव है ना। एंड अगर कानून सबनों प्रॉपरली रिस्पैक्ट करता है पॉजिटिव, तो ये सारा आ जाता है। तो ये अपने को इक्वालिटी दे इक्विटी ते इक्वालिटी की डिफरेंस है। फिर आ सारे में कुछ कुछ कोटेशंस लिखती हैं। सोशल जस्टिस का की कॉन्सैप्ट होंदा है, ठीक है। एंड आर्टिकल 15 आ जाओ। आर्टिकल 15 की कहता है द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ਕਿਹਦਾ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗਾ गल सी। हाँ तो देखो है ना, सीधा सवाल है, माड़ा जा भी आपका दिमाग ला के भी पढ़ लेने का हो जाता। तो प्लेस ऑफ रेजिडेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आ सारे वेल, टैंक, बेथिंग गार्ड, रोड इन्हें सारे दे रखे हैं। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 तो बाद ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है पॉजिटिव। विमेन एंड चिल्ड्रन नू, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नू, ठीक है ना। एंड ये सारे आ जाते हैं एडेड बाय द मतलब इस है ना, समझिए ना ये पूरा। उस बाद ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है, अफर्मेटिव एक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 16 जो जॉब्स के आ जाता है, लेकिन उस बाद रिजर्वेशन आ जाती है। रिजर्वेशन का पूरा डिबेट जी है। फिर 17 आर्टिकल अनटचेबिलिटी में अबॉलिश करते हैं आप बाय लॉ। एंड ये उपर कुछ कुछ कानून पास किए गए जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989, टाइटल्स की अबॉलिशन आर्टिकल 18। ये एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक डिस्टिंक्शंस देखो देखा है, प्रोहिबिट द इंडियन सिटीजन फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो ये भी
ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਟੂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦਾ ਦੇ ਟਾਈਟਲਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਤਲੁਕਦਾਰ ਇਹ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟਾਈਟਲ ਬਟ ਅ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਆਰਟੀਕਲ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਦ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਖਤਮ, ਟਾਈਟल्स ਖਤਮ। ਫਿਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ 14 to 18 ਆਰਟੀਕਲ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਥਰੂਆਊਟ ਦ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ 8 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1951 ਦੇ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ 8 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ 8 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ 20 ਕਲੌਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਲਾਅ, ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਆਫ ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ, ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਡਬਲ ਜੈਪਰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, 2 ਵਾਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 21A, 45 ਤੇ 51 ਇਹ 3 ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 21A ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ, 45 ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ LGBT ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈਲਦੀ এনवायरमेंट ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੂਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਪੁੱਤੂ स्वामी जजमेंट हो गया। फिर कुछ डिबेट्स आए हैं आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए है, यूथनेशिया होना चाहिए, मर्सी किलिंग जिन्होंने कह देंगे है, ड्यू प्रोसैस वर्सिस प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ की होंगे, वो सारी चीज़ां आपने देखियां। हुणे मैं दस्या सीगा कि वॉट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसैस वर्सिस प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ, कि नाजी नूं किवें ना परसिक्यूट किया गया। ड्यू प्रोसैस का मतलब होंदा है कि वैदर द लॉ वॉज फॉलोड और नॉट, प्रोसीजर एस्टैबलिश्ड बाय लॉ का मतलब होंदा है कि लॉ विच दिता होया चीज़ां वॉज फॉलोड और नॉट, मतलब फ्रेमिंग ऑफ द लॉ एंड वॉट इज़ गिवन इन द लॉ। तो इन्हां दे विच डिबेट की हैगी है। फिर आर्टिकल 22 आ जाता है विच इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड आर्टिकल 22 कहता है कि कोई भी तुहानूं फड़ूगा नहीं विदाउट वारंट, है ना, तुहानूं पहला वारंट दिखाना पऊगा एंड सपोज तुहानूं फड़ दे तो 24 घंटे के अंदर अंदर नीयर मैजिस्ट्रेट को जाना पैना है। लेकिन एक एक्सैप्शन हैगी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, जिहदे विच इदां दे कानून हुंदे जिहड़े कहंदे कि बई तुहानूं फड़िया जा सकदा है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन हुंदा है कि पहले कानून एग्जिस्ट करता है बिफोर यू कमिट अ क्राइम। पुनिटिव डिटेंशन हुंदी है कि क्राइम हैपन्स आफ्टर, है ना, यू आर पनिश्ड, ठीक है। प्रिवेंटिव हुंदा है बिफोर पनिशमेंट। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के भी कुछ ना कुछ सेफ्टगार्ड्स है जोड़े लिखे हुए हैं। सेफगार्ड्स के पहला पर्सन को सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी सिर्फ 3 महीने लिए लैके जा सकते हैं। उस तो बाद अगर अगे जाके लैके जाना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठूगा जिसे हाईकोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होगी जो दसूगी कि 3 महीने तो अगे एक्सटेंड करना है। सैकेंडली उन्होंने ग्राउंड्स पता होने चाहिए डिटेंशन के, एंड थर्ड उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने की राइट्स होनी चाहिए। सो इवन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के भी अपने को कुछ सेफगार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल 23 to 24 जोड़ा है वो अपने को आ जाता है ना, एक्सप्लॉयटेशन। 23 आर्टिकल अपनी गल करता है जनरल ह्यूमन लेबर, ह्यूमन ट्रैफिक, बैगिंग, बैगरी एंड वो सारी चीज़ों के विच। एंड 24 आर्टिकल डिस्कस करता अपना चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये सारे कानून भी दे रखे हैं। सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 24 की कहता अपना प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। लेकिन आर्टिकल 24 थोड़ा जा है ना घट मतलब कंप्लीट है क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 14 साल तक आप हजारडूअर्स दे विच नहीं करा सकते। तो अगेन वो डिबेट आ जाती है, इस करके उन्हें चेंजेस एक्सपैक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। 25 तो 28 अपने को रिलीजन के आर्टिकल आ जाते हैं। 25 कहता कि इतने कोई भी रिलीजन की राइट हैगी है, किसी को भी कोई मर्जी रिलीजन प्रैक्टिस करो, प्रे, प्रैक्टिस, प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। आर्टिकल 26 की कहता है कम्युनिटी राइट है, मतलब कि रिलीजन एज अ कम्युनिटी भी राइट हैगी है। तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। कम्युनिटी राइट हैगी है, ठीक है। आर्टिकल 27 की गल करता है फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कि पहले कोई भी रिलीजन टैक्स नहीं पे करूगा, है ना, जिवें पहला हुंदा सी जजिया टैक्स, वो टैक्स उदा दे टैक्स नहीं होणगे। एंड आर्टिकल 28 ही कहता है कि तुसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस दे विच रिलीजियस वो नहीं दे सकते, मतलब धार्मिक एजुकेशन नहीं दे सकते अगर वो सरकारी स्कूल है। लेकिन अगर वो सरकारी स्कूल नहीं है एंड कोई ट्रस्ट या एंडोमेंट है तो वो तुसी दे सकते हो। तो ये उन्होंने विच डिस्कशन की है। नैक्सट आ जाओ बेटा। तो ये सारे मैं दिखाई देते तो देखो आर्टिकल 25 कहता कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो। आर्टिकल 26 कहता SGPC आऊगी,
ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਂਡ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 30 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ 30 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਗਏ। ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 31 ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੀਪੀਐਸਪੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ 39A ਜਾਂ B, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਡੀਪੀਐਸਪੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ 39A ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਲਥ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਵੈਲਥ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 31 ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 32 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 31 ਆਰਟੀਕਲ ਕਮਸ ਫਰੋਮ 9 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਲਸੋ। ਦੇਖੋ 9 ਸ਼ਡਿਊਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਹ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸੇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 39A ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ 39A ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 39A ਵਿਲ ਸੁਪਰਸੀਡ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੇਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 32 ਆਰਟੀਕਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਫਰਦਰ ਇਨਕਲੂਡਡ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। 5 ਰੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੈਂਡਮਸ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ ਤੇ ਕਿਊ ਵਾਰੰਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗੇ। ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂਡਮਸ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਉ ਵਾਰੰਟੋ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਰਸ਼ਿਓਰਾਰੀ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਆਰਡਰ। ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ 34 ਦੇ 35 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ। 33 ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ, ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 34 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 34 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਂਡ 35 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਆਰਟੀਕਲ 20 19 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 19 ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ। 35 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 35A, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ 370 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 35A ਵਾਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਠਾਂ ਲਾ ਲਾਂ, ਪੌਣੇ 11 ਹੋ ਗਏ। डीपीएसपी ਤੇ ਆ ਜਾਓ। तो डीपीएसपी की करता अपने को इंडिया ने कत्ल लिया 1937 है ना, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी सीगे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, एनफोर्सेबल नहीं है एंड दे आर वेरी मच फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड लैजिसलेटर ऑफ इंडिया के सामने है ना प्रिंसिपल्स देंगे कि आप जो कानून बनाने किमें बनाने हैं, इंडिया ने वेलफेयर स्टेट इनफिसिस करते हैं, एप्लीकेबल और प्रीएम्बल है, वो सारी चीज़ आ जाती है। बेसिक ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट है ना, लेकिन ये वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। मैं दसिया वो पोलिटिकल है, सोशल जस्टिस क्रिएट करते, ये भी क्वेश्चन आया सी तो पेपर दे विच, ठीक है। तो DPSP ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, DPSP ਕਲੈਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਨਫਲਿਕਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ DPSP ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਿਨੇਰਵਾ ਮਿਲ ਕੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया सी। फिर एडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट आ देखो, आ भी क्वेश्चन आया हुआ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 1976 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ क्वेश्चन ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 48A ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਫੋਰੈਸਟ 48A, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ, which was not added। which was not added by 44th amendment। ਸਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। तो ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 37 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 38 ਆਰਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 39 ਆਰਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 40 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 41 ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 41 ਆਰਟੀਕਲ। 42 ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 43 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 44 ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 44 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 47 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਟਾਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 48 ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। 48 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਟ ਐਂਡ ਮਿਲਚ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 48A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ 48 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪੂਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 49 ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 50 ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ, ठीक है हाँ। तो ये जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव चो करना नहीं है। 50 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ 51 ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਪੀਐਸ ਵੀ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਫਰਮ USSR ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, 11 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 10 ਸੀਗੀਆਂ, 11ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ नहीं किया वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस ਨੂੰ। तो यहाँ तक हमारा हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। कितने पेज हो गए हमारे, तो अपन ने 132 पेज कर लिए, ठीक है। कोई झूठ कह रहे हैं। तो कितनी देर च कर लिया ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 132 ਪੇਜ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3-3 4-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है कशिश। तो एफिशिएंसी बढ़ानी है पढ़ाई की, क्या बनानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है पढ़ाई की, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है पढ़ाई की, रिवीजन ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪੇਜ ਬਦਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੂੰਗਾ 9 ਤੋਂ 10 ਪੋਲਿਟੀ, 10 ਤੋਂ 11 ਹਿਸਟਰੀ, 11 ਤੋਂ 12 ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। चलो जी लेट अस कम टू नेक्स्ट, डायरैक्ट इनडायरैक्ट इलैक्शन है ना। हाँ ये सारी चीज़ां तुहानूं क्लीयर होनी चाहिए। तो ਟੈਨਿਓਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਿਮੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਹਰੇਕ ਦੀ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਗ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਏ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਸ 20 ਬॉडीज़ है टोटल ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, 20 बॉडीज़, हर बॉडी का 10 पार्ट हैगे है, तो 200 चीज़ां याद करनी है, ठीक
ठीक है, तो ईजिली याद हो जाऊगा। करना की है, एलिजिबिलिटी च भी यही कुछ होंगे, एज की है ਉਹਦੀ, सिटीजनशिप की है, इंडिया चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, इलैक्शन कौन इलैक्ट करता उन्होंने, डायरैक्ट इंडायरैक्ट इलैक्शन है, ठीक है। डायरैक्ट दे विच फस्ट पास द पोस्ट सिस्टम होंगे, इंडायरैक्ट दे विच प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होंगी है, टेन्योर की होंगे, एमोलूमेंट्स की होंगे, टेन्योर किन्ने साल लिए रहिंदा है, एमोलूमेंट्स उसकी सैलरी की है, पेंशन की है, किहड़े शेड्यूल दे विच आपां नूं ओह देखण नूं मिलदी है, ओथ दा कंटेंट की है, एंड किहनूं खवांदा ओथ, कित्थे खवांदा, किहनूं खवांदा, पावर्स की ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, फाइनली ਉਹਨੂੰ इम्यूनिटी की है, यही चीज़ आ जाती हैं। एंड इंडिपेंडेंस होती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अपने राष्ट्रपति हूँ चेंज हो गए, ठीक है, तो ये सारा देख लोगे ना, एलिजिबल टू बी मैंबर ऑफ लोक सभा, ठीक है, एलिजिबल टू बी मैंबर ऑफ लोक सभा, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की गल आर्टिकल 58 च गई है, लेकिन प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट या फिर कोई मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये सारे बैठ सकते इलैक्शन दे, दे आर नॉट डिसक्वालीफाइड। इलैक्टोरल कॉलेज एमपीज इलैक्टेड एमपीज करते हैं, एमएलएज ऑफ यूटी एंड दिल्ली पौंडीचेरी करते हैं, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रजेंटेशन फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होंगे है। ये मैं सारा तुहानूं क्लास से समझाया हुआ है, इन्हूं मैं रिपीट नहीं करूँगा ना, ये तुहानूं पुछण वाले पेपर दे विच, ठीक है, पेपर च सिंपल पूछणगे पीआर विद एसटीवी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ देखो की होंगे, वोट ऑफ एमएलए की होंगे, स्टेट की पॉपूलेशन डिवाइड कर दो विद टोटल नंबर ऑफ इलैक्टेड एमएलएस, तो इत्थे नॉमिनेटेड नहीं आएंगे, इलैक्टेड एमएलएस आएंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुहाडे कोले हर वोट एमएलए की वोट की वैल्यू आ जूगी। इन्हां सारियां वोट की वैल्यू नूं कैलकुलेट कर लियो, ठीक है, डिवाइड कर दियो विद टोटल नंबर ऑफ एमपीस, वो भी इलैक्टेड एमपीस होणगे, तो एमपी की वोट की वैल्यू आ जूगी, एंड जो तुसीं वोट पाउण जाओगे तो तुसीं आपदी वैल्यू वोट पाओगे, समझ गए ना। तो कंडीशन टू द प्रेजिडेंशियल ऑफिस, इम्यूनिटीज़ की होंगी है, इम्यूनिटीज़ ये पर्सनल इम्यूनिटी हैगी है, क्रिमिनल इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ स्टार्ट हो सकती हैं। प्रेजिडेंट ओट्स आर्टिकल 60 के अंडर कहता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को खवांदा है, एंड ये ओथ का मतलब है टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कई लोगों की ओथ जी हैगी वो शेड्यूल दे रखी है, शेड्यूल 3 च दे रखी है, लेकिन कईयां दी कॉन्स्टिट्यूशन दे विच हैगी, राष्ट्रपति की केस है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच है, शेड्यूल च नहीं मिलती। फिर टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट, आ सारे टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट है, ये थोड़ा नैक्सट जो टेस्ट है ना, यही क्वेश्चन आएंगे ये ही। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट तुहाडे कोले 5 ईयर्स का हो गया, एंड वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उस तो पहला भी ये रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेजिडेंट, एंड आर्टिकल 61 जो है वो इंपीचमेंट की गल करता है, लोक सभा इंपीचमेंट इनीशिएट करता है, ठीक है, लेकिन 1/4 ऑफ द मैंबर्स ऑफ द लोक सभा जोड़े है वो साइन करके देंगे, 14 दिन का नोटिस दिता जाऊगा, फिर लोक सभा इंपीचमेंट रखूगा, इंपीचमेंट है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी काम आती है इतने 2/3 ऑफ द टोटल मैंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, फिर राज्यसभा चला जाऊगा, राज्यसभा भी उस तरीके नाल पास करूगा, राष्ट्रपति रिमूव कर दिता जाऊगा। वैकेंसी राष्ट्रपति की डेथ के केस भी हो सकती है, जिवें जो भी वैकेंसी होंगी रिमूवल डेथ एंड रेजिग्नेशन के केस के वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है, एंड राष्ट्रपति को 6 महीनों के अंदर अंदर अपॉइंट करना पैंदा है, ठीक है। तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत पावर्स होंगी, लैजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये सारिया पावर्स। तो अगर आप देखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो अपॉइंटमेंट की पावर हैगी है, काफ़ी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हैं वो सारे अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या है सारे अपॉइंट करता है, रिमूव करता है। लैजिस्लेटिव पावर्स के अगर आप देखिए तो राष्ट्रपति प्रोरोग कर सकता है हाउस नूं, है ना, समन भेज सकता है, डिजोल्व कर सकता है, 12 मैंबर नॉमिनेट करता है राज्यसभा नूं, डेफिनेटली दोनों हाउस ऑफ द पार्लीमेंट नूं जॉइंटली एड्रैस करता है, आपदा बिल असेंट देंदा है, बिल है ना, लॉ बता ही बनता है, एंड डेफिनेटली ऑर्डीनेंस भी पास कर सकता है, सारे लैजिस्लेटिव पावर्स हो जाती है। लैजिस्लेटिव पावर्स दे विच कुछ बिल विदाउट प्रेजिडेंट की असेंट तो रखे नहीं जा सकते, है ना, एंड डेफिनेटली जिवें स्टेट बाउंड्रीज वगैरह रखनी है तो उस केस दे विच राष्ट्रपति की असेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, एंड ईवन वीटो पावर भी एडमिनिस्टर कर सकता है, कोई वीटोज होंगी है। एंड अगर आप देखिए तो पार्लीमेंट है, एंड जोड़ा है ना की नाम है, पार्लीमेंट लॉ पास करूगा, प्रेजिडेंट उस लॉ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਦਊਗਾ, एंड दैन फिर फाइनली ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ 3 टाइप ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ, ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀਟੋ। ਜਿਹੜੀ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੀਟੋ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੌਕਟ ਵੀਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਟੋ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀਟੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो वीटो पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारियां चारों वीटोज आ गई, तुम ये चेक कर लियो। फिर फाइनैशियल पावर्स दे देखो, मनी बिल हो गया, टैक्सेस लगाने हैं कुछ, है ना, मतलब वो सारे तुम्हें पता है प्रेजिडेंट जो बजट रखवांदा है। सो फाइनेंस मिनिस्टर इज एक्टिंग लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वैन वो बजट रखा जा रहा है। जुडिशियल पावर दे देखा होगा कि 72 आर्टिकल जो है ना, वो प्रेजिडेंट को पावर देता है
ਕਲੇਮੈਂਸੀ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਲੇਮੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਡਨ, ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਪਰੀਵ, ਰਿਸਪਾਈਟ ਤੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਡਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ। ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਿੰਪਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਪਰੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਾਊਂਡਸ। ਰਿਪਰੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਾਰਡਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 5 ਆਫ them। तो ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो अगर आप देखिए पार्डन है ना, पार्डन मतलब जमा छड़ता, ठीक है। तो अगर तुहानू रिगरस इंप्रिजनमेंट दी है तो उस तो तुहानू लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब नॉर्मल इंप्रिजनमेंट देती, तो इनू आप की कह देंगे रिमिशन, ठीक है। ये रिमिशन हो जाएगा क्योंकि आपने है ना चेंज किया, ठीक है। अच्छा सॉरी ये कम्यूटेशन हो गया, इनू आप चेंज करता, रिगरस इंप्रिजन तो नॉर्मल इंप्रिजनमेंट करता। फिर रिस्पाइट कि अगर तुसी बजुर्ग हैगे हो तो तुहानू वाला रिस्पाइट चाहिए है ना। उस तो बाद आ गया, ठीक है। तीनों डिफरेंस समझ आ गया ना कि बेसिकली डिफरेंस हैगा पार्डन, कम्यूटेशन, रिस्पाइट। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦਾ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ sending the bill passed by both houses for reconsideration। लेकिन इस केस मनी बिल ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होगा, बाकी सारे बिल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿਲ ਤੇ ਕॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੀਟੋਇੰਗ ਦ ਬਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀਟੋਇੰਗ ਦ ਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀਟੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸਿਵ, ਪੋਕਟ ਵੀਟੋ ਵੀ ਕੀ ਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਬਿਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। डेफिनेटली नवे प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ अपॉइंट करना, अगर प्रधानमंत्री डेथ हो जाए, फिर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना।